Please? UFA has requested producers now to, not cast Pakistani actors. See, the thing is that right now we are very overwhelmed with the loss of our soldiers, right? Our Jawans and our sons. So the country is mourning in that grief, and it's very hard to be objective right now. But we hope the love and art prevails. But right now, we can't expect people to be objective when such a big loss we have to deal with, right? I'm not going to indulge in this question and talk about my view here, but all I feel is that what is happening is absolutely disastrous and extremely sad. There is nobody who's going to deny that, and it's beyond my comprehension because you're not there. You can sympathize and talk about it, but people who are there are, I don't have words for that, but I don't think we should ban Pakistani actors, and I'm going to end it at that. I just think it's important about what we do. We are not in a position to opinionate about what the others do or don't do. So we can only speak for ourselves. Sonakshi can speak for whether she goes through the emotion, whether I go through the emotion, and what we express is solely our opinion. And I'm just very fortunate to be a part of the film industry because I think we really go out there and we express our solidarity with not only our country, but with our soldiers who I again say on record are the true heroes of this country. I think firstly I feel they should do whatever they feel addresses the main issue, which is terrorism. So I don't know if this addresses the main issue. Of course, actors जो हैं वो we all know that I mean they do come in only with proper permissions, so there should not be a problem ideally. But right now at this situation थोड़ी situation ऐसी है कि जो भी government को सही लगता है जिससे जो main issue है, जो main मुद्दा है वो address होगा, then they can go ahead and do whatever. Of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and the cricketers. That's about it. Yeah. Okay. Bye bye. See, it's a political comment. तो उस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट आर लाइक सॉफ्ट टारगेट्स. तो सबसे पहले आर्टिस्ट ही टारगेट होते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. क्या कंसंट्रेशन कहीं और है. दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू इट. If this was a solution, then fair enough. But this is not the solution. Honestly, I feel that if anything, cinema, music, the arts is something which brings people together. It's not something which should be used to separate people. Government policies will come, they will go, they will change. But if you listen to music, people like Rahat Fateh Ali Khan are some of my favorite musicians. उनके साथ मैं रो भी देती हूँ, हंस भी देती हूँ, गा भी देती हूँ. तो दुख है कि पॉलिटिकल माहौल ऐसा है कि जहाँ पे देश को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं. वो लोग बेहतर जानते हैं इसके बारे में. बट एज एन आर्टिस्ट आई फील वेरी पेन्ड व्हेन आई सी दैट आर्ट कैन बी यूज्ड टू रियली ब्रिंग पीपल टुगेदर, एंड दैट इज़ वन ऑफ इट्स बिगेस्ट पर्पसेस. कि आप मोज़ार्ट का म्यूज़िक सुन के आप मूव्ड हो जाते हैं, और वैन गो की पेंटिंग देख के आपको कुछ और ही लाइफ का पहलू नज़र आता है. एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट, विच आई डोंट थिंक politics and art will always be at conflict with each other. So that's the way it is. वो देखिए धुन तो पिसता ही है वो तो धुन पिसता है, और उसमें सबके अलग अलग विचार हैं, इसीलिए इतनी उस बात पे डिस्कशन भी हो रही है. और डिस्कशन डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी चीज़ है. उसमें अगर आप बात करें तो एक हिस्सा एक विचार रखता है, एक विचार रखता है, और दोनों जब अपना तर्क रखते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं सही होते हैं. लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक आम आदमी जिनका डायरेक्टली इस सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पर ऐसा होता है. आशा करते हैं कि थोड़े दिन में ये डिफ्यूज़ हो जाएगा और शायद पहले से बेहतर रिश्ते हो, ऐसी उम्मीद रख सकते हैं. बस इसके बारे में मैंने कल भी कहा कि आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है. जो टेररिस्ट हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारे गवर्नमेंट ने, आई थिंक इट वाज टुवर्ड्स द टेररिस्ट अगेंस्ट द स्टेप दैट दे टुक ऑफ किलिंग आवर जवान्स एट द उरी बॉर्डर. दैट टू व्हेन दे वर asleep, which was extremely unfair
So I don't think that the poor artists from Pakistan should face the flack, but yeah, I think that I am totally against terrorism and what has happened, but I'm not against every single Pakistani for sure, because every Pakistani is not a terrorist, and yeah. गर्द और टेररिस्ट कर रहे हैं वो गलत है, वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है और उसका जवाब देना चाहिए जो हमारी सरकार और हमारी आर्मी ने दिया है। इतना हमें पता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। टेररिस्ट गलत होते हैं, वो गलत लोग हैं, उनके साथ उनको पनिश करना चाहिए और उन्हें किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई कर सकता है डिफेंड टेररिस्ट को। तो आई थिंक कि फिर डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्या हमें इंडिया में काम करने देना चाहिए। अब इस पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग अपनी राय इमोशन में आके दे रहे हैं, कुछ लोग अपने इमोशन को थोड़ा दूर रख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को वो दे रहे हैं। तो ठीक है यार, अब हमारा देश में बहुत अलग किस्म के लोग हैं, बहुत अलग किस्म के विचार होंगे इसको लेकर। मुझे लगता है कि हमारी आर्मी और हमारी सरकार अपना काम कर रही है एंड वी शुड लेट देम डू देयर वर्क। हाँ, मुझे इतना ज़रूर लगता है कि कलाकार और टेररिस्ट एक दूसरे मतलब या तो ये ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई भी कलाकार का टेररिस्ट से कोई लेना देना हो। यू नो, आई मीन वो अपना काम कर रहे हैं, वो टेररिस्ट बिल्कुल ही घटिया काम कर रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कनेक्शन इज़ एज फार एज पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड कि वो अब निंदा नहीं कर रहे टेररिस्टों की और अपने सरकार की। मुझे लगता है वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत हमारी। 3 महीने पहले अमजद साबरी नाम के एक बहुत ही मशहूर कव्वाल उनके देश में अनआइडेंटिफाइड गनमैन द्वारा मारे गए, असैसिनेट हुए, आज तक नहीं पता चला किसने किया है। अब ऐसे माहौल में एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो एक फेल्ड स्टेट है, जिस पे आरोप है कि तुम टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, आपके शहरों में बम ब्लास्ट होते रहते हैं आए दिन, आपके लोग टेररिज्म से मारे जाते हैं। अब ऐसे देश में और ऐसे माहौल में अगर वहाँ के कलाकार डर रहे हैं टेररिस्ट से पंगा लेने में, तो इसमें क्या हैरानी है यार। ऑब्वियसली वो अपने जान के लिए और अपने परिवार की जान के लिए उन्हें डर लग रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। They are scared. This is what I think. You can now click on the link given in the description below to download the official Bollywood Backstage app for the latest news and gossip. Don't forget to subscribe to Bollywood Backstage.